नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर रामनाथ कोविंद खिताब कर रहे हैं। Sovereignty vests, and it is in their name that the Constitution was adopted. The Constitution empowers the citizen, but the citizen too empowers the Constitution. By following it, by adhering to it, by protecting it, and by persevering to make it more meaningful with words and deeds. The Constitution is nobody's preserve, and it is everybody's preserve. Perhaps the most moving word in the Constitution is justice. Justice is a single word. Justice is a complex and liberating expression, and justice is both the means and the goal of our constitutional and nation-building process. In the narrow sense of our legal system, justice is served when right and wrong are adjudicated upon in a courtroom, and more so when justice is accessible, affordable, and quickly available to all citizens, irrespective of their background. But justice must also be seen in a wider context, in terms of society's evolution and its changing beliefs, lifestyles, and technologies. Ladies and gentlemen, the preamble to the Constitution guarantees to all Indian citizens justice, social, economic, and political. The preamble is an irreplaceable aid to appreciating and interpreting the Constitution. If I could use a term with which the younger generation may be familiar, the preamble is the source code of the Constitution. In the preamble, justice is not seen as unidimensional. It is viewed as having implications across political, economic, and social spheres. Political justice implies the equal participation of all adults in the political process and the just formulation and implementation of law. Economic justice implies the ultimate eradication of poverty, equal opportunities to earn a livelihood, and fair wages. As such, the expansion of economic entrepreneurship and job opportunities are among examples of economic justice. Ladies and gentlemen, given the diverse history of our people and given imbalances and hierarchies that have sometimes marked our past, social justice remains a touchstone of our nation building. At the simplest level, it implies the removal of social imbalances and the harmonization of rival claims and needs of different communities and groups. Social justice is about providing equal opportunities. Such a conceptualization. विज्ञान भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में रामनाथ कोविंद खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब के पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस से 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन रुकवाकर इन मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये ट्रेन जम्मू से दिल्ली आ रही थी। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के 3 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे और धमाका खेज अशिया बरामद की गई है। गिरफ्तार शुदा तीनों मुश्तबा अफराद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। बिहार असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। इस मुख्तसर सेशन के लिए अपोजिशन बड़े हंगामे के मोड में है। मेन अपोजिशन पार्टी आरजेडी कई इश्यूज को लेकर हंगामे के मोड में है। जीएसटी का मामला सरमाई इजलास में सुर्खियों में रह सकता है। इसके अलावा रियासत के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अपोजिशन वजीर आला पर निशाना साधने के मोड में है। मुल्क के साबिक वजीर रेल सीके जाफर शरीफ की तदफीन आज अमल में आएगी। कल जाफर शरीफ का इंतकाल 85 साल की उम्र में बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ था। बताया जा रहा है कि महरूम जाफरी शरीफ की नमाज जनाजा मस्जिद कादरिया में अदा की जाएगी और तदफीन क़ुदूस साहब ईदगाह में होगी। जाफर शरीफ के इंतकाल पर हर जानिब से गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है।
बेंगलुरु में बड़ी तादाद में लोगों ने जाफर शरीफ की रिहाइश का पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया। कि मैक्सिमम ट्रेन्स और मैक्सिमम हिंदुस्तान में जो है रेलवे लाइंस जो पड़े वो जाफर शरीफ साहब की बदौलत से हुए हैं। जब बॉम्बे में फसादात हुए तो एज ए रेलवे मिनिस्टर जो है पुलिस स्टेशन में जाकर मासूम मुसलमानों को जो कैद किया था वो रिहा करने वाले हैं। और पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंट्री इंदिरा गांधी के साथ बैठकर बात करने की जो जरूरत थी वो है सब बात जाफर शरीफ के पास। ये एक आवाज़ थी न केवल मुसलमानों की मगर एक सेक्युलर फैब्रिक की आवाज़ थी शरीफ साहब। ये अगर जब बोलते तो मीडिया अटेंशन होता और उनका वो कम बोलते मगर जब बोलते तो कभी भी सच बोलते। अब अलहाज CK जाफर शरीफ साहब सिर्फ हमारी रियासत कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बुज़ुर्ग सियासी कायद रहे हैं और आपकी खिदमत न भुलाया जा सकता है न हम आपको कभी भूलेंगे, क्योंकि हर एक के साथ आपका रिश्ता बड़ा अच्छा रहा। और हाल में जब मेरी मुलाकात मैं समझता हूँ हाल से मुराद एक 2-3 माह पेशतर जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये तमन्ना जाहिर की कि मैं मदीना मुनव्वरा जाना चाहता हूँ, वहीं जाकर मैं सेटल होना चाहता हूँ। उसके लिए शायद उन्होंने कोशिश भी की, बहरकैफ अल्लाह ताला को जो मंजूर था, जो होना था वो हुआ।